Hello. Ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Why afternoon? कहाँ से हो गया ये afternoon? All of you are present. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And thank you so much जिन्होंने मुझे उस दिन Hello. Thank you so much जिन्होंने मुझे उस दिन टीचर्स डे के लिए विश किया था. मुझे पर्सनल विश आई थी. थैंक यू सो मच एवरीवन. जिन्होंने किया उनको भी थैंक यू. जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू. नो प्रॉब्लम. बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास आया था हैप्पी टीचर्स डे वाली मैसेज. थैंक यू सो मच. चलिए व्हाट वी हैव टू डू टुडे. आपको 3 लेसन्स दिए गए थे लर्न करने के लिए. आई विल आस्क वन बाय वन. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री लेसन. Weavers, iron smelters, and factory owners. Are you ready to give answers? Hello. Say yes or no. Are you ready to Yes, give answers? Yes. Yes. Yes, ma'am. Let us start from this chapter. Then I will see कि मैंने ऐसे लगा के रखे हैं. First there is history, then there is social science, and then there is geography. Okay. Can I ask you? yes, ma'am. What kind of cloth had a large market in Europe? Patola cloth. मेन बता दीजिए. पटोला सेकंड में आ जाता है. मेन व्हाट वाज द मेन क्लॉथ दैट had a large market in Europe? Ma'am, cotton. हाँ, नहीं पूरा आंसर दीजिए मुझे. गिव मी फुल आंसर. अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो देन गिव मी फुल आंसर, नॉट कॉटन. से गिव फुल आंसर. Cotton had a large कॉटन एंड सिल्क हैड. Cotton and silk large had a large in Europe. market in Europe. Yes, ma'am. Different varieties of Indian textile were sold in European market. जिसमें बहुत सारे थे. खस्ता, बन्नी, जामदानी. पूरे से आंसर दे दीजिए मुझे. डोंट गिव मी दिस वन वर्ड आंसर. आई एम नॉट आस्किंग फॉर वन वर्ड आंसर. आई एम आस्किंग फुल क्वेश्चंस टू यू एंड गिव मी फुल आंसर. Cotton and silk had a large market in Europe. Give the answers like this. What is Jamdani? Jamdani weaver, earlier 12th century. Jamdani is a fine Muslim on which detective motifs are the woven on the loom. Good. आप किसी से देखकर बोल रहे हैं मुझे? What is बांधनी? Bandhani is a patterns were mostly designed in the Rajasthan and Gujarat. Bani are very brightly colored and printed scarf for the neck head. Originally, the term derived from the word bandas, Hindu or line, and refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. Main बांधनी क्या क्या होता है? Tying and dyeing is the main. Tying and dyeing means कि आप उसमें कोई चना डाल देते हैं या कुछ ऐसी इमेज उसमें डाल देते हैं कपड़े में. Then you tie it. उतने में बंद करते हैं. जब हम उसको कलर करते हैं, डाई के लिए डाल देते हैं, वो उस पर इमेज आ जाती है. मैंने उस दिन भी बोला था थोड़ा सा करके देख लीजिए, तो आपने किया नहीं होगा. What did the wool and silk producers in England protest against import of Indian textile?
क्यों वहां पर उन्होंने किया था, स्ट्राइक टाइप का किया था? Wool and silk producers in England protested for the banning of Indian textile because they were worried about the popularity of Indian textiles. So Hear in that. Pooja, repeat again. Pooja, repeat again. the wool and silk producers in England protest against the imported Indian textile in 18th हाँ, century. They हाँ, were worried about the popularity of the Indian textile. So the British government banned the Indian imported textile chintz, and this act was known as Calico Act. What was Gandhiji's urge? गांधी क्या चाहते थे? Gandhiji's urge was to urge people to boycott imported textile and use hand spun and hand woven clothes. Who are the Agaria? Agaria जो कम्युनिटी थी, कौन थी वो क्या करते थे? Agarias was a community who lives in Bihar and in central India. They were specialized in iron smelting, and then they helped the Tisco company to find their factory. वो find the land. लैंड को जब कटाई करनी थी, लैंड को साफ करना था, these agarias were used for that work. Why was Tipu Sultan's sword so special? Tipu Sultan's sword was was so special because steel converted into the sword gave it is a sharp, rugged edge and the end which could easily break through the opponent arrow. Why did the Agarias leave their village? क्यों उनको अपना विलेज छोड़ के जाना पड़े? Why did the Agarias have to leave their village? Because they had no work. No work was left for them, so they left their village and found a new place for them. वो उनके टाटास के साथ चले गए थे ना, जगह ढूंढने के लिए. Who helped Tisco expand? Who helped Tisco expand steel production during the First World War? एक इंडियन था, एक फॉरेनर था. क्या नाम थे उनके? Tisco was able to Charles expand Weld, Jamshed Singh Ji, सोराब जी टाटा. उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जिसमें ये अगरिया थे. दे वेंट टू प्लेस टू प्लेस. जमशेदपुर चले गए, छत्तीसगढ़ चले गए, तो वहां पर उनको जगह मिली. दे स्टार्टेड देयर फैक्ट्रीज देयर ओनली. Who went in search of iron ores in the area of Chhattisgarh? Charles Weld, Dorabji Tata, or Jamshedji Tata went to Chhattisgarh in search of iron ore. Why did the iron smelters industry decline in 19th century? कैसे खत्म हो गई थी? क्या हुआ था कि वो कम होने लग गई? The Indian iron sedimenting industry declined in the 19th century due to the following reason. In composition of the new forest, laws prevented people from the entering and the revert of the forest. Due to the Indian settlements where the Britishers don't allow to enter in the forests. अगर उनको अंदर forest जाना भी पड़े, first they have to pay the tax for entering into the forest. Then अगर वहां पर कोई और उनको मिलता है, then they have to pay the double tax for that. तो इसलिए उनको लगता था अगर हम अंदर पहले हम दे देंगे एक टैक्स अंदर जाने के लिए,
फिर अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, ये नहीं पता था ना कि उनको किस पर्टिकुलर जगह पर मिलेगी आयन, तो so they have to pay again the taxes. So that's why this started decline in the 19th century. आपको आंसर तो दे रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग आंसर्स ऑरली, आप पढ़ के सुना रहे हो, दिस ऐसे नहीं काम चलेगा ना। चलो नेक्स्ट, दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से जो एक्सरसाइजेस है यही आपने की हुई है कि कुछ और किया हुआ है? ये सर ने आपको पढ़ाई यही आईएसटी जिसके का एग्री चैप्टर का भी टेस्ट है। मैम वो भी क्वेश्चन आंसर सिर्फ किए थे। क्वेश्चन आंसर बुक वाले किए थे ना? यस मैम। यस उसके मैम। बाद मुझे पता है कि हमने क्या किया है। ये जो फर्स्ट वाले यही पूछूंगी मैं। Why does a democratic country need a constitution? India is a democratic country, isn't it? हमको constitution की क्यों जरूरत थी? Why we need a constitution? Why does a democratic country need a constitution? A democratic country needs a constitution because a constitution lays down certain rules and regulations which forms a basic kind of country that a citizen believe their country should uphold on. The constitution also tells us the fundamental nature of our society. Good. Why only Pooja is giving answers? Why don't other? What about the other students? बाकियों को भी आंसर देना चाहिए ना? What is the difference in who exercises? पहले मैम पढ़ाया था तो मैम इस चैप्टर के मैम क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे। ऐसे कैसे? आपने मुझे क्यों नहीं बोला कि हमने होमवर्क में दिया था? तो आपने बोला ही नहीं मुझे कि जब मैंने आपको ये होमवर्क भेजा था तो आपने उसी टाइम मुझे या बिफोर मुझे कह देती हमने ये क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं। सर ने तो बोला था करने को, तो इन्होंने नहीं सर किया। ने बोला था करने को। मैम नहीं बोला था मैम। सर मैम जब मैम वीडियो से पढ़ाते थे मैम ये वाले चैप्टर, तो फिर मैम सर मैम जब ऑनलाइन क्लास चली तो मैम तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट नाउ? दोबारा से इस लेसन को करें कि क्वेश्चन आंसर आप खुद करोगे? क्वेश्चन आंसर खुद कर लेंगे, कल टेस्ट दे देंगे फिर। 1, 2 and 3 you have to do. पूजा यस मैम। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें किए हुए हैं आपने? विच वन? 1, 2, 3 और 1, 3, 4? इसमें जो बुक में टिक लगा हुआ है इसमें 1 और 2 नहीं है। इसमें कौन कौन से किए हुए हैं? जस्ट टेल मी। मैम एक मिनट। हाँ देखिए मैम फर्स्ट किया है, सेकंड भी, और मैम थर्ड। मैम थर्ड मैम पूरे ही किए हुए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड है बस। मैम बस फोर्थ नहीं किया, बाकी सारा किया। फोर्थ और सिक्स नहीं किया। फोर्थ और सिक्स्थ ओके। यस मैम, बाकी सारा किए। तो टुमारो, कल इसका टेस्ट कल होगा। अगर पूजा आपको आता है तो आप थोड़ा सा भी इसको बता दो, बाकी स्टूडेंट्स भी सुनेंगे। व्हाट आता है आपको? कैन यू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस इन who exercise the executive powers in the above two constitution of Nepal? यस मैम। हाँ just tell, बताइए। According to the old constitution, the executive power of the country was in the hands of the king, which was not acceptable for the citizens of Nepal. So they protest for several years to change the constitution. Then in 2007, the new constitution drafted. According to them, the executive power of the constitution was in the hands of council minister, which was headed by the PM. Good.
हमने पहले ही बोला था, जब यहाँ पर या कहीं पर भी किंग्स का रूल हुआ करता था, किंग्स चाहते थे कि उनके हिसाब से सब कुछ चले। अब उसको प्राइज देना है, किसी भी बात पर उसको मारना है, उसके हाथ काटने हैं, उसको ये करना है, उसको वो करना है। किंग्स ऐसे ही अपना रूल है, उन्होंने अपने ही कुछ लॉज बनाए हुए थे। तो जब ये धीरे धीरे खत्म हो गया किंग्स रूल एंड एवरीथिंग, तो लोगों को लगा कि प्रॉपर लॉज होने चाहिए, equal laws होने चाहिए for everyone, whether he is poor, whether he is rich, whether he is belongs to any caste, any religion, should be equal for everyone. Then only there was the need of making laws in the Indian constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर जो बाकी कंट्रीज थे, उन्होंने भी धीरे धीरे कहा कि जब इंडिया ऐसे इतनी ह्यूज लार्ज कंट्री कर सकते थे, व्हाई नॉट। काफी स्टेट्स ने, काफी कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया, काफी जगह पर डेमोक्रेटिक रूल है, तो बहुत सारी जगहों पर अभी डिक्टेटरशिप ही चल रही है। डिक्टेटरशिप मीन्स वन मैन्स रूल या लॉ, कुछ भी करे, कोई कुछ करेगा, किसी के साथ भी आप कुछ करो, नो कोड नथिंग, बस उनके जो लॉज बने हुए वही लॉज चलते हैं, उसके आगे कुछ नहीं चलता है। What would happen if there were no restrictions on the power of elected representatives? If there is जो हम no restriction, if there is no restriction, if there is no restriction on the power of elected representatives, वही हुए जिनको हम चुनने दे, अगर उनके ऊपर के ना वो तो कुछ भी करेंगे, then हाँ, if there were they no might restriction on the if they there is might be no if there is no restriction on the powers of elected representative, they might be misuse of the power given to them. The Indian Constitution provides us safeguards against the misuse of power by the political leaders. हमने एक लेसन में भी पढ़ा था कि जो पावरफुल लोग होते हैं, अगर उनके अपने रिलेटिव्स या उनके अपने रिश्तेदार या उनके अपने बच्चे कुछ क्राइम करते हैं, दे वांटेड टू हाइड दैट, ये अपने पैसों के या अपने पावर के बलबूते पर वो लॉ को भी साइड कर देते हैं। व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए भी वही पावर्स यूज होते हैं, वही लॉज यूज होते हैं, वही लॉ रेगुलेशन यूज होते हैं जो एक कॉमन मैन के लिए, हमारे जैसे लोगों पर जो लॉ करता, अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। सेम इज विद एवरीवन, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई है। फोर्थ वाला किया है, in which the following situation I defined the minority. Write one reason why you think it is important to respect the views of minorities in each of the institution. In a school with 30 teachers, 20 of them are male. In a school, the staff members are 30 and out of 30, 20 Mine are the male answer. members. Huh? In a city, 5% of population are Buddhist. In a factory mess, for all employees, 80% are vegetarians. In a class, 50 students, 40 belongs to from well-off families. ये जहाँ मेजॉरिटी बहुत सारी हो और माइनॉरिटी कम में हो, तो मेजॉरिटी अपना पावर इन माइनॉरिटी के ऊपर यूज करती है। जहाँ 30 टीचर्स होंगे इन स्कूल, अगर इफ देयर आर 30 टीचर्स, 20 आर मेल्स, तो उन्हीं की ज्यादा चलेगी, वही जो रूल्स पास करेंगे। सेम इज विद एवरीवेयर एंड दिस इज डन। कैन यू गिव मी आंसर टुमारो? हेलो? Yes, ma'am. हाँ, कल करेंगे ना ये सारा कुछ लर्न आप थोड़ा सा इसका इसको पहले यही है, इसमें से कुछ लॉज बने हुए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। जो हमने पूरा इस लेसन में भी 3-4 जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, सभी रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, कुछ ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है कि क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, यही के रूल्स चाहिए, वो चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन चाहिए, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू वोट, ये सब चीजें चाहिए। दिस इज डन नाउ। अब मैं जाऊंगी इसके तरफ। Geography. ये भी आप
ज्योग्राफी, ये भी सर ने करवाया। आप मुझे बोलेंगे ये सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं आपने? Yes, ma'am. रिसोर्सेज, रिसोर्सेज सारे किए हुए हैं, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद जो भी है वो मुझे पता है कि हमने क्या क्या किया हुआ है। तो ये फर्स्ट चैप्टर सारा कुछ किया हुआ है, मतलब सारे क्वेश्चन आंसर्स के हैं इसमें। सब क्वेश्चन एक में भी 3 3 4 4 सब पार्ट्स है। कैन आई आस्क यू राइट नाउ? कैन आई Yes, आस्क? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Why are resources distributed unequally over the earth? The distribution The of natural distribution resources of natural depends upon resources many physical factors like land, climate, and altitude, and the deposition of resources is unequal because these factors are different from the place to place हम्म, on this earth. अगर हरियाणा में वीट होता है तो किसी दूसरी जगह पर कुछ और चीज, अगर हरियाणा में कुछ हमें मिलता है तो किसी और जगह पर कोई और मिलता होगा हमें चीजें। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation. कंजर्वेशन, कन्वर्सेशन नहीं, कंजर्वेशन। Conservation. Why are human resources important? Human resources are important because people use natural resources to make a building, bridge, roads, machinery, and vehicles. People can make the best use of nature to create more resources when they have a knowledge, skill, and the technology to do so. From tomorrow you must give your answers orally. आप नीचे बुक के देख रहे हो, बुक में से देखकर या नोट्स में से देखकर, इट वोंट वर्क। यू गिव मी योर आंसर्स orally. आज हम ऐसे ही करते हैं, चलेगा। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Using resources carefully and conserve them for the future is called sustainable development. Only Pooja and Sachin is giving answers. What about the other students? How many students are present right now? Balancing the need to use resources and conserve them for Yeah. the future is called sustainable development. Okay. Which one of the following does not make substance a resource? Utility. Number 1, utility. Quantity. Value. No, ma'am. क्या नो मैम? वैल्यू। चले क्वांटिटी। Yes, ma'am. Quantity, ma'am. Yes, ma'am. Which one of the following is human-made resources? Medicines or Medicine treat medicines cancer, to treat cancer. spring water, tropical forests. नहीं, number A. Medicines to treat Medicines to treat cancer. Medicine. Medicine. Complete the statement. Biotic resources are derived from living things, made by human beings, derived from non-living things. Derived from non-living Derived from things. non-living things. Differentiate between the following: potential and actual resources. Ma'am, which one? Potential and actual resources. चलिए, नो मैटर। और कुछ किया है इसमें? इसमें सिर्फ अब एक्टिविटी है बस, और कुछ नहीं है। फॉर फन एंड बस इतने ही किए होंगे ना, 1 2 3। इसमें भी सब पार्ट्स है। बुक में तो मैम डिफरेंस वाला है ही नहीं मैम, बस मैम सेकंड क्वेश्चन और मैम वो थर्ड क्वेश्चन अच्छा। एक्टिविटी वाला है। अच्छा, मेरे पास जो है इसमें डिफरेंशिएट है। हो सकता है कि ये कोई नई होगी। मेरे पास जो बुक है इसमें 3 क्वेश्चंस है।
चलिए कल हम करेंगे एग्रीकल्चर, मैं भी भेज दूंगी आपको, फिर भी आप करेंगे एक एग्रीकल्चर इसमें, और उसमें वो रिपीट करेंगे वो वाला लेसन। हिस्ट्री में हिस्ट्री में नहीं, हिस्ट्री वाला हो गया, कौन सा आपने रिपीट करना था? हम चैप्टर 1 Political. पॉलिटिक्स का। अच्छा हाँ, वो रिपीट करेंगे, चैप्टर 1 उसको रिपीट करेंगे। इसमें से ज्योग्राफी में से कोई और, ये मेरे बट मैम पास वो आपने कहा था कि आधी एग्रीकल्चर चैप्टर का टेस्ट होगा। आज था, यस मैम। तो लर्न किया आपने एग्रीकल्चर? यस मैम। एग्रीकल्चर तो तभी तो जब मैं स्टार्ट करती हूँ तब आपसे पूछती हूँ ना कि आपको क्या करना होता है, क्योंकि वैसे मैं लिख देती हूँ तो कभी कभी मिस हो जाता है। चलिए एग्रीकल्चर वाला पूछना है, इज अ वेरी यस लॉन्ग मैम। लॉन्ग चैप्टर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? Agriculture is a primary activity that including the growing crops, vegetable, fruits, flowers, and rearing the livestock. Agriculture is a primary activity as the connected with the extraction and production of natural resources. Name the factors influencing agriculture. The factor that influences agriculture include soil, climate, topography, and pollution, etc. Anybody else? कोई और आंसर देगा क्या? मैम आपने ये चैप्टर बोला ही नहीं था, सब में से आपने वो फर्स्ट कह रहे चैप्टर बोले थे। फर्स्ट तीनों बुक चैप्टर में बोला से था, हम इसको हाँ, Yes, ma'am. हम इसको नहीं पूछते हैं, हम कल सेकंड चैप्टर करते हैं, मैं भी थोड़ी देर में लिख लेती हूँ, और उसका फर्स्ट चैप्टर अभी इसको वापस हम करते हैं इसको। अगर उसको अभी रीडिंग करना है तो उसको भी एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं उसका, इसको भी रीड करते हैं, सो डेट आप थोड़ा सा, काफी टाइम हुआ होगा ना, मई में किया है क्या? कब किया हुआ है ये लेसन आपने? मे बी मई या जून में किया, मई में किया होगा ना ये लेसन। Yes, ma'am. चले थोड़ा सा इसी को कर लेते हैं आज, इसी का रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको लर्न हो जाए। ये जो राइट साइड में है ना, जो ब्लैक में है, उसी को मैं रीड आउट करूंगी, तो उसी से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हमें। व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? Today, most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries